क्यों इंपॉर्टेंट है ये? Where Wollen eigentlich über Ruhrgebiet sprechen. Ruhrgebiet is a particular area in Germany. Also wo liegt Deutschland? Also das ist Europa. इसको अगर पूरे को यूरोप माना जाए, जो कि मैंने यूरोप का ही मैप लिया है, तो यूरोप तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना. अब इसको कैसे करें? हमको ऐसे कट मारना पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो ऐसे ये सेंटर में किया मैंने लगभग. सो das ist dann vielleicht Osten, das ist Westen, das ist Norden, das ist Süden. तो आप वेस्ट से साउथ की तरफ, ठीक है. या फिर आप कह सकते हो कि अगर यूरोप का ये सेंटर है, सपोज ये अगर यूरोप का है, तो सेंटर से वेस्ट की तरफ. क्लियर? रशिया को ईस्ट में मानोगे और इधर यूके वगैरह को इनको वेस्ट में मानोगे, तो ये सेंटर है यूरोप का. तो जर्मनी जो है वो सेंटर से थोड़ा वेस्ट की तरफ है, ठीक है. Das ist Europa. Then in Deutschland, also das sind dann Nachbarländer und in der Mitte hier ist Deutschland. Das ist hier Deutschland. In Deutschland diskutieren wir heute über Ruhrgebiet. And Ruhrgebiet is here. This is Ruhrgebiet. And wo liegt Ruhrgebiet in Deutschland? Ruhrgebiet liegt im Westen. Das ist Osten, Westen, Norden und Süden. Und das ist dann Zentrum hier. Also Ruhrgebiet ist hier rot gezeichnet. This is Ruhrgebiet. Ruhrgebiet bedeutet also ein Gebiet. Gebiet का मतलब है एरिया और रूर का मतलब है रफ एरिया. Rough area. Als Industrialisierung begann, war das eigentlich hier in Deutschland. ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात हुई तो सबसे पहले जर्मनी में खदाने, कोयला वगैरह यहां निकला. इस्पात की, स्टील की इंडस्ट्री, कोयला, सो कंपनियां यहां पे स्टार्ट होना शुरू हुई. एंड als hier sowas also entstand, dann brauchten viele Firmen eigentlich Arbeitskraft. What is Arbeitskraft? Labor. Arbeitskraft. Die Arbeitskraft. क्राफ्ट का मतलब है पावर. वर्क करने के लिए पावर चाहिए था, आदमी चाहिए थे. Also Deutschland hat dann also die andere Länder gesagt oder Deutschland ließ andere Menschen also bewerben lassen का मतलब है लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला अप्लाई करो और एक प्रोसेस से हमारे देश में काम करने के लिए आ जाओ. एंड पीपल वर रिक्वायर्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दैट एरिया वाज कॉल्ड एज रूरगेबीट. कि खदान है, रफ एरिया है भैया, एकदम इसको सुंदर बनाना है, यहां सामान बनाना है और बाहर बेचना है, या फिर खदान में से कोयला निकालना है और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा. सो Ruhrgebiet. Hier gibt es auch einige Flüsse. ऑफ कोर्स कुछ नदी भी होंगी यहां पे आसपास. एक नदी का ही नाम है रूर.
एंड गिबीट का मतलब है एरिया, रूर नदी वाला एरिया, रूर नदी वाले एरिया में, एरिया को बोलते हैं रूर गिबीट. ओके. Und wenn die Menschen kamen, viele Menschen kamen, zum Beispiel in Polen gab es Arbeitslosigkeit, in der Türkei gab es Leute, oder in Italien, in vielen Ländern gab es Arbeitslosigkeit. There were joblessness, Arbeitslosigkeit. Die Menschen kamen hier und das heißt Einwanderung. When people come from different countries, they come from different countries to Germany, also das heißt dann Einwanderung. इस एरिया में लोग आए वहां से, तो जहां से आए इसको प्रोसेस को बोला गया मिग्राशन, माइग्रेशन. दी मेंशन कामन, सो जहां आए तो बोला गया यहां पे आइनवांडरुंग, और जहां से चले गए उन लोगों ने कहा आउसवांडरुंग, कि हमारे लोग गए. आउसवांडरुंग, आइनवांडरुंग, आउसवांडरुंग, आउसवांडरुंग, आइनवांडरुंग, das sind Nomen and verb will be einwandern. Here verb will be auswandern, einwandern, auswandern. Okay, das ist dann wichtig. Migration. Die Menschen kamen für das Glück. Why people were coming? Arbeitslosigkeit gab es da, Joblessness थी, Sie brauchten Arbeit und die Firmen brauchten Arbeitskraft. उन लोगों को काम चाहिए था और कंपनियों को लेबर चाहिए थी. Arbeitskraft means labor. Sie kamen hier, aber die Arbeit war eigentlich anstrengend. Das war schmutzig. Die Arbeitsbedingungen मतलब work conditions were bad. Arbeitsbedingungen means work conditions waren schlecht. They were not good. Schlecht. Also es gab keine Versicherung. There was no insurance. keine Versicherung. इसका मतलब है काम करते करते कोई मर गया तो मर गया, हम क्या करें भाई, काम किया उस दिन तक का उसको पैसा दिया ना, ऐसे कह देते थे और फ्री. Also es gab keine Versicherung, keine Unfallversicherung und die Arbeitsbedingungen waren eigentlich schlecht, unsauber. Die Arbeit war anstrengend, बहुत ही थकाऊ काम था. schmutzig का मतलब है गंदा. anstrengend, schmutzig. Okay. Und schlecht. Und die Menschen, die hier arbeiteten, और जो लोग यहां काम करते थे, उन लोगों को बोला गया मालोखर. इन लोगों को बोला गया मालोखर. मालोखर का मतलब होता है फिजिकल हार्ड वर्क करने वाले लोग. मालोखर, जैसे आपने कभी देखा हो लोग दिहाड़ी पे जो काम करने जाते हैं सुबह सुबह, आदमियों की मंडी लगती है अपने तो जयपुर में तो लगती है भाई आदमियों की मंडी, कि आदमी खड़े हो जाते हैं कि हमको ले लो, और कोई आता है उनको लेके जाता है. ठीक है, सो जॉब मिलता है उनको. सो मालोखर, आप उन लोगों को देखते हो मंडी पे जो खुद को खड़ा कर लेते हैं, उनको देखते हो तो कई बार आपको लगता है कि ये बंदा बूढ़ा हो गया है. आप उसको एज पूछोगे तो बताएगा 43,
आप कहोगे 43 के ही हो आप लग तो ऐसे रहे हो जैसे 62 के हो, राइट? सो जब आर्बाइट, स्मूथसिस, अनस्ट्रिंगेंट, हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड, स्मूथसिस, स्लेस्ट, dann wird man eigentlich also konsumiert, आदमी कंज्यूम हो जाती है बॉडी। und diese Malocher also hatten schlechte Arbeitsbedingungen, bekamen auch nicht viel Geld und sie arbeiten, also die Kinder waren auch Malocher, die Kinder arbeiteten auch 12 Stunden, बच्चे भी 12-12 घंटे काम करते थे। Die Kinder arbeiteten auch bis zum 12 Stunden und das war eigentlich normal. Sie kamen von unterschiedlichen Ländern, they came from different countries, zum Beispiel aus Türkei, aus der Türkei, sie kamen aus Polen, aus Italien, Ungarn, das waren eigentlich hauptsächlich die Länder. Mainly यहां से ज्यादा आए लोग, आए तो बहुत जगह से, बट ज्यादातर यहां से आए। Sie kamen von diesen Orten zu, sie kamen zu Ruhrgebiet. Und Ruhrgebiet bedeutet welche Städte? Ruhrgebiet का मतलब वो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी जगह पे आए। How many cities are there? The cities, I will show you the list of the Ruhrgebiet area. Here war eigentlich so viele Menschen wie 10% von ganz Deutschland, पूरी जर्मनी में पॉपुलेशन थी उसका 10% केवल मेरी अंगुली के नीचे जो जगह आ गई, केवल इसी में 10% लोग रहते थे। अंगुली के नीचे जो जगह है केवल इसमें 10%। इट मीन्स so many people came. Alle große Firmen, zum Beispiel also Thyssen oder Krupp, Thyssen, Krupp, these Krupp, so big companies of Germany, people wanted to work with big companies. अभी भी हमको कोई बोलता है कि किस में काम करोगे तो हम बोलते हैं जर्मन सीखने के बाद में डॉइचे बैंक, सीमेंस, बॉश, बड़ी कंपनियों का ही नाम लेते हैं, बायर वगैरह, उनके लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे ही वहां भी ये थाइसन और क्रूप ऐसी कंपनियों के लिए काम करना चाहते थे। एंड दिस एरिया वाज वेरी मच पॉपुलेटेड, मेनी पीपल केम हियर वन आफ्टर अनदर, मिलियंस लोग यहां पे आ गए। 10% पॉपुलेशन इसमें आ गई पूरी जर्मनी की। सो हाउ मेनी सिटीज आर देयर इन दिस स्मॉल एरिया? हाउ मेनी सिटीज आर देयर? Any idea? 2, 3, 5, 10. There are actually 53 cities because it is much populated. जैसे अपने इंडिया से तुलना करें तो जैसे दिल्ली कहाँ खत्म होता है, नोएडा कहाँ शुरू होता है, गुड़गांव कहाँ शुरू होता है, पता ही नहीं चलता, सब एक में एक हो गया और पूरे को बोल दिया एनसीआर। पता करना ही मुश्किल है भाई कहां पे खत्म हो रहा है, सब मिल गए आपस में। यही सीन यहां पे हो गया। इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतनी कंपनियां आ गई एक के बाद एक, इतनी जनता आ गई दुनिया से, देश से, तो जर्मनी के भी लोग काम के लिए इधर थोड़े खींचे आए और यूरोप के भी खींचे आए जिनको जॉब चाहिए था। रूरगेबिट, आज इसी की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी हियर। Das ist dann die größte Stadt Deutschlands. This is the biggest city of Germany.
It is actually not only one city, group of cities you can say. So in Germany it is in the west, and then this map is of Ruhrgebiet. इसी मैप को बड़ा किया है. So इसमें देखो कौन कौन सी cities हैं और बड़ा करके हमने देखा. तो there are total 53 cities. For example, Ruhr is the river. So you see, first of all, there are two rivers actually, Ruhr and Lippe. Ruhr, ये जो राइन्स हैं इधर आ रही है, ये रूर रिवर है. दिख रही है आपको? RUHR, रूर. दिस इज रूर. सो रूर के अंदर एरिया है ये. इधर रूर नदी के अंदर का एरिया. और इधर लिप है. लिप दिखेगा आपको? ये लिप है. दिख रहा है? लिप है. सो द एरिया बिटवीन द रिवर Lippe and Ruhr is called Ruhrgebiet. Gebiet means area. Okay, now the big cities. Which cities are there? One is here, Bottrop. Bottrop is the city. Gelsenkirchen, Oberhausen, Duisburg, very big city. Krefeld, Mülheim, Essen. ये खाने वाला एसन नहीं है, सिटी का नाम है एसन. Gelsenkirchen, this is a city. Bochum, another big city. Witten, Hagen, Dortmund, big city. Herne, Recklinghausen. So like this, छोटे बड़े इसमें 53 cities हैं total, and this is the area, and it is called the größte Stadt Deutschlands. कि ये पूरा मिला के एक ही मान लो तो ये पूरा एरिया हो गया, रीजन हो गया. वन सिटी नहीं रह के पूरा का पूरा रीजन हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग आ गए काम करने के लिए. Also das ist dann Ruhrgebiet. Geografie, sehen Sie sich die Karten an, wo liegt das Ruhrgebiet? So we have seen now where it is situated in Deutschland. Is it in Germany? Ja. Beschreiben Sie die Lage von Duisburg, Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen. Das sind die also große Städte. Hier, die Stadt liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. So this state is called Nordrhein-Westfalen. पूरे स्टेट का नाम इस स्टेट में है. ये रूरगेबीट पूरे स्टेट में नहीं है, बट स्टेट इसी स्टेट में है. Region liegt zwischen den Flüssen Ruhr und Lippe. Ist östlich oder südlich von in der Nähe. आप अगर कोई पूछे आपसे वो liegt Bochum, बोखुम कहाँ है, तो आप कैसे बोलोगे? It is located, जैसे आपको बताया था पहले मैंने कि ऐसे अगर कोई डिवाइड करे, इसको बोलोगे ऑस्टन, वेस्टर्न, ज़्यूडन und नॉर्डन, और सेंटर में इसको आप बोलोगे इम. इंटरमीडिएट होता है बीच में. सो बिकॉज सारे डायरेक्शंस जो भी है उनका आर्टिकल डेर होता है, इसलिए आप बोलोगे बोखुम लिग्ट. बोखुम जो है, ऐसे भी करके देखो तो आप ये कह सकते हो कि बोखुम जो है वो बोखुम डोर्टमुंड के तो ईस्ट में है. अब एकदम ईस्ट में नहीं है, तो ईस्ट से थोड़ा नीचे जा रहा है. सो वेस्ट, बोखुम जो है इसके वेस्ट से थोड़ा नीचे, तो वेस्ट से नीचे इसको बोलते हैं जूड वेस्ट, जूड वेस्टर्न. ऐसे ही इसको बोलेंगे नॉर्ड ऑस्टन, इसको बोलेंगे जूड ऑस्टन, और इसको बोलेंगे नॉर्ड वेस्टर्न.
ऐसे याद रखो, ऊपर वालों में तीनों में नॉर्ड 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 और नीचे वालों में तीनों में जूड जूड जूड, ऐसे करके हम लोग। तो अब कोई बोले कि बोखुम कहां है, तो आप बोलो बोखुम डोर्टमुंड के जूड वेस्टन में है। विटन, एग्जैक्टली विटन एक्चुअली जूड वेस्टन में है, बट इसको आप इसको भी बोल सकते हो, जूड वेस्टन में बोल सकते हो, थोड़ा एकदम सीध में नहीं है इसलिए। सो कौन सी चीज कहां पे स्थित है, ये आपको ईस्ट इम ऑस्टन, ईस्ट इम वेस्टन, ईस्ट बोल दो चाहे लीक्ट बोल दो, एक ही बात है। ईस्ट लीक्ट, जो भी सिटी है उसका नाम बोलो, बोलो बोखुम लीक्ट, बोखुम ईस्ट, और फिर इम, और फिर डायरेक्शन ऑस्टन वेस्टर्न, फोन डॉइचलैंड बोलना हो तो जर्मनी के हो जाएगा, और उस सिटी का नाम लेना है तो उस सिटी का नाम आ जाएगा। स्टार्ट। मेन ये सिटीज के नाम आपको रट जाने चाहिए, बिकॉज बार बार आएंगे और आप डिक्शनरी में भागते फिरोगे, वहां देखोगे ये रेक्लिनहाउजन का क्या मीनिंग है, और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। डुइसबुर्ग, म्यूलहाइम, एसन, रेक्लिनहाउजन, डॉर्टमुंड, बोखुम, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, बार बार आपको टेक्स्ट में दिखने वाले हैं। सो आपको पता होना चाहिए कैसे बोलते हैं हम लोग, कौन सी चीज कहां पे स्थित है। दिस टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। नाउ वी सी द टेक्स्ट। ये आपकी B1 की बुक के अगर आप 5-6 कोई टेक्स्ट निकालोगे, 10 टेक्स्ट निकालोगे, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। एंटविक्लुंग आइनर इंडस्ट्री रेगियोन, द डेवलपमेंट ऑफ ए इंडस्ट्रियल एरिया। किस तरह से डेवलपमेंट हुआ? आइनर, यहां गेनेटिव वही है, डेवलपमेंट ऑफ अ industry region from Dorf Suhrstadt, from a village, how that became city, and then the größte Industrieregion Deutschlands and state. Das Ruhrgebiet ist eine der größten Industrieregionen Europas, and this area is not only important for Germany, it is one of the biggest industrial area of Europe. Das Ruhrgebiet ist eine der größten Industrieregionen Europas. Es liegt zwischen den kleinen Flüssen Ruhr und Lippe, östlich des Rheins. It is situated, so Lage, वो befindet er sich, ये कहाँ पे स्थित है? वो liegt es, वो ist es. Das ist zwischen, आ गया तो डाटिव आएगा, es liegt, liegen के कारण, es liegt zwischen den kleinen Flüssen, it is situated between the small rivers Ruhr und Lippe, östlich des Rheins, राइन नदी के ईस्ट में। राइन नदी के ईस्ट में कैसे दिखाता हूं आपको साथ के साथ। मैंने बोला लिपे इज हियर एंड रूर इज हियर, सो ये राइन देखो, राइन यहां पे है, तो राइन नदी से तो ईस्ट में ही हुआ, तो योस्टलिस भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इम ऑस्टन फोन, एक ही बात है। योस्टलिस बोल दो या फिर इम ऑस्टन फोन राइन, ऐसे ही वेस्टलिश इम वेस्टर्न फोन ऐसे बोलते हैं। ओके, also wir kommen zurück zum Text. Kleinen Rheins zum Ruhrgebiet gehören unter anderem मतलब we are telling here some of the places but there are many more. Unter anderem die Städte Bochum, Duisburg, Essen, Oberhausen und Dortmund. So we have seen these names. Insgesamt hat das Ruhrgebiet heute fast 6 Millionen Einwohner. ये 5-7 साल पहले जब भी बुक छपी होगी उस टाइम के लिए कह रहे हैं कि at present there are 6 million people living. Das heißt fast 10% der Bevölkerung. अभी तो खैर
पॉपुलेशन जर्मनी की 83.5 मिलियन के आसपास होगी, पहले कम थी, तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं इट इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन जर्मनी लिविंग हियर. These people are 10% people are living here according to the text. Die Geschichte des Ruhrgebiets ist auch die Geschichte der Industrialisierung. Genitiv का यूज हुआ है, des Gebiets. The history of या फिर story of Ruhrgebiets is also the story of the industrialization Germany. जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ रूरगेबिट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, क्योंकि हुआ ही पहले वहां पे. Im 19. Jahrhundert begann sie mit dem Abbau der Kohle. अब्बाऊ का मतलब है खनन. वहां पे 19th सेंचुरी में का मतलब 1800 में, एडवांस में ऐसे बोलते हैं हम. 19th सेंचुरी में अब्बाऊ खनन हुआ स्टार्ट, कोयले का, कोल है, des schwarzen Goldes and people call it gold, black gold. कोयले को ब्लैक गोल्ड बोलते थे पहले, अभी भी बोलते होंगे. आजकल तो कोयले को प्रीफर नहीं करते क्योंकि इतना प्रदूषण हो जाता है. 1865 hatte Dortmund 4000 Einwohner. In 1850 Dortmund city, that time it was just a maybe village, it had only 4000 people. 1900 waren es 143.000 and अगले 50 सालों में यहाँ पे 4000 से 1,43,000 हो गए. Also, das sagt alles. Aus dem Städtchen, उस छोटे से पिद्दे से सिटी से, war eine Großstadt entworden. It became a big city. Die Geschichte des Ruhrgebiets ist auch die Geschichte der Arbeitsmigration. The story of Ruhrgebiet is also the story of Arbeitsmigration, working migration. So migration start हुआ इस Ruhrgebiet के साथ ही. In der großen Session, Session का मतलब है खदाने. लास्ट में पूछूंगा कॉमन वर्ड्स. Session खदाने. In den großen Session, बड़ी बड़ी खदानों में, und für die Stahlproduktion, Steel production, brauchte man Arbeitskräfte. People needed labor, or these industry units needed labor for steel industry and these mines. Brauchte man Arbeitskräfte. Sie kamen from land मतलब Germany. They came from the country oder aus dem Ausland, but they also came from foreign countries und zogen in die kleinen Häuschen in den Bergarbeitssiedlungen. They came and Arbeitssiedlungen का मतलब है छोटी छोटी कॉलोनियां बना दी गई. जब भी कोई फैक्ट्री स्टार्ट होती है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन कराने वाले लोग उनको रहने की सुविधा भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है रोज इसको हम लोग 8 बजे बुलाएंगे, ये 10 बजे आएगा. कभी कहेगा कि मुझे ट्रैफिक मिल गया, कभी कुछ और काम हो जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, काम हो गया जी, तो बेटर है इनको यहीं दो. तो ना तो इसको काम होगा ना लेट होगा, तो वो सुविधा भी होगी उस पर्सन के लिए भी और इनके लिए भी. तो छोटी छोटी कॉलोनियां बच जाती हैं टेम्परेरी, आपने देखा होगा. सो उनको बोल रहे हैं ये लोग जिडलुंग. जिडलुंग इज कॉलोनी, और आर्बाइट्स जिडलुंग का मतलब है वर्कर्स की कॉलोनियां. हॉइशन, हाउस के साथ CHN लगा दिया, मतलब छोटे छोटे. ये जो माइग्रेट होके लोग आए, लेबर जो आए, दे स्टार्टेड लिविंग इन दीज वर्किंग कॉलोनीज. Die von den Firmen gebaut wurden and these colonies were made, they means constructed them for the labor. Bis 1914 waren schon 700 Menschen, 700,000 Menschen, 100 नहीं 100,000, 7 लाख लोग हो गए 1914 तक. 1800 तक थे 4000, 1900 में 50 सालों में हो गए 1.5 लाख, और 1.5 लाख से अगले 14 सालों में हो गए 7 लाख.
aus dem europäischen Ausland, from यूरोपियन आउसलैंड, मतलब यूरोप से ही थे तो विदेश, लेकिन यूरोप के ही विदेश। फॉर आलम आउस पोलन, पोलैंड से आए लोग, aber auch aus den Niederlanden, Österreich, Ungarn, Italien an die Ruhr gekommen. They came to the Ruhr. Ruhr means Ruhr area. Sie wollten bei den großen Kohle- und Stahlkonzernen, Konzern वर्ड देखो यहाँ पे आया है, एक तो होता है फिर्मा, एक होता है फैब्रिक, एक है unternehmen, और अब है ये कॉन्सर्न। सो unternehmen का मतलब है कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी unternehmen। फिर्मा भी कंपनी है, राइट। फैब्रिक का मतलब है फैक्ट्री, और कॉन्सर्न का मतलब होता है बहुत बड़ा, जिसकी बहुत सारी कंपनियां हों, सिस्टर कंपनियां हों, जैसे टाटा, बिरला। अब टाटा की हो सकता है 500 कंपनियां हो सकता है कि 1000 कंपनियां हो, कुछ कह नहीं सकते अपन। हर सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां, उनका अलग ही चलता है हिसाब किताब, लेकिन टॉप लीडरशिप एक ही है, तो इसको कॉन्सर्न बोलते हैं। ऐसे ही रिलायंस, अंबानी ना, इनका रिलायंस का, अंबानी ग्रुप का, ऐसे ही मान लो अडानी होगा, ऐसे ही दूसरे होंगे, बिरला का होगा, तो जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन टॉप मैनेजमेंट एक है, जनरली उनको कॉन्सर्न बोलते हैं। सो ये मल्टीपल कंपनियों का मैनेजमेंट देखने वाले होते हैं। सो देन जी कॉमन हियर इन कॉन्सर्नन, स्टाल कॉन्सर्नन, कोले कॉन्सर्नन और स्टाल कॉन्सर्नन, कोयले की और स्टील की बड़ी बड़ी कंपनियां। zum Beispiel bei Krupp und Thyssen, जैसे मैंने लिखा था कि ऐसी बड़ी कंपनियां Arbeit finden, sie wollten Arbeit finden und ein neues Leben beginnen. They thought we will start a new life. हर कोई चाहता है उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, आराम आए, तो ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा ताकि आगे का अच्छा हो, ऐसे सोच के आए होंगे। In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kamen noch einmal über eine Million Arbeitsmigration hinzu, and in coming 10-20 years 1 million people came again, noch einmal, jetzt vor allem aus der Türkei und Südeuropa, and this time mainly people came from Turkey and other South European countries. Die Arbeit in der Stahlindustrie war unter Tage. जो स्टील इंडस्ट्री का जो काम था, unter Tage का मतलब है कि दिन तो धरती के ऊपर होता है, धरती के अंदर थोड़ी सूरज चमकेगा, यहाँ तो माइनिंग है, यहाँ पे तो खदान अंदर है जमीन के अंदर, सूरज तो यहाँ जर्मनी में ऊपर ही नहीं चमकता, ऊपर ही कम चमकता है, तो अंदर तो छोड़ो। सो unter Tage का मतलब है अंडर द अर्थ। Die Arbeit war ungesund, schmutzig. The work was anstrengend, very tiring, unhealthy and dirty. काम था noch bis 1859 dauerte der Arbeitstag auch für Kinder mindestens 12 Stunden. Even for kids it was 12 hours working time. बच्चों को भी 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, बड़ों को तो शायद 16 घंटे काम में लेते होंगे। ओके, bis zur Sozialgesetz, सोशल मतलब सोशल, गिजेट्स का मतलब होता है कानून, गिजेट्स, गिबुंग, बिस्मार्क। बिस्मार्क जब जर्मनी में आया, उसने सोशल, ये सारा सिक्योरिटी की बातें करी कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, लोगों के क्वालिटी सुधरनी चाहिए, जिंदगी में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। सो देन ही स्टार्टेड एक्चुअली समथिंग फॉर देम। 1803 und 80 gab es keine Sozialversicherung. Till then there were no social security. Keine Sozialversicherungen, aber jeden Tag schwere Arbeitsunfälle. And every day there were schwere Arbeitsunfälle, means tough accident. वर्क के दौरान पता चला 7वीं मंजिल से कोई गिर गया,
टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी पहले. सो देर वर एक्सीडेंट्स. Mit Fierces waren die meisten Malocher. Malocher means hart Arbeiter. Waren die meisten Malocher krank und verbraucht. Till 40 people were consumed. 40 तक आते आते बीमार हो जाते थे, मर्म खप जाते थे, शरीर खप लेता था एकदम से. Und verbraucht, consumed. Freizeit war für sie ein Fremdwort. Free time was for them a फ्रेंड वर्ड, मीन्स न्यू वर्ड, फॉरेन वर्ड. उनको पता ही नहीं था फ्री टाइम भी कुछ होता है क्या. फ्री टाइम क्या होता है? काम करो, खाओ और काम करो, थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो सो लो, बस. Ein paar Bierchen am Feierabend in der Stammkneipe, das war es. और फ्री टाइम के मामले में खुद की थकान मिटाने का तरीका उनका ein paar Bierchen, एक आध कोई बियर की घूट मार ली. am Feierabend at the time of closing, जब खत्म करके आए काम. in der Stammkneipe, Stammkneipe जहां उठा बैठी रहती है उनकी, नियर बाय जहां भी वो बैठते हैं. कंपनियों के पास छोटी मोटी दुकान हो ही जाती हैं, सो एक आध कोई घूट मार लिया. das war es, that's it. इसके अलावा कुछ नहीं. ein beliebtes Hobby waren die Brieftauben, die Rennpferde des kleinen Mannes. Another hobby was कबूतरबाजी. कबूतरों को लड़ा लिया, कबूतरों को उड़ा लिया. That was, and it was called as a Pferd des kleinen Mannes. छोटे आदमियों का तो भाई कबूतरी घोड़ा है, ब्रीफ टाउब है. पहले बोलते थे कबूतर जा जा, लेटर ले जा, वैसा ही मामला है इसमें. ब्रीफ टाउबन, जो उनको भेजते थे, खेलते थे उनके साथ. Die wenigen freien Tage verbrachte man in der Gartenkolonie. wenigen, देखो दी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आ रही है, प्लूरल है, तो पिस्टल के बाहर आ गया तो ईएन तो लगेगा ही लगेगा. डेर टाग होता है ओरिजिनली, प्लूरल हो जाता है दी टाग है, लेकिन इनके बीच में अगर एडजेक्टिव आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल प्लूरल के बीच में ईएन ही आता है, क्योंकि ये पिस्टल के बाहर है अपनी टेबल के हिसाब से. पिस्टल बनाते हैं अपन, पिस्टल के अंदर ई और पिस्टल के बाहर प्लूरल वाला, हमेशा पिस्टल के बाहर ईएन आता है. सो ये बोल रहा हूं मैं. Die wenigen freien Tage verbrachte man in der Gartenkolonie. गार्डन कॉलोनी में स्पेंड करते थे, थोड़ा बहुत कोई फ्री टाइम मिल गया तो. Das Scherbergärtchen war für die ganze Familie wichtig and this Scherbergarten, छोटे छोटे गार्डन होते थे. ये शेरबन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी एक टेक्स्ट है, आज बताऊंगा आपको घर के लिए. Die Kinder hatten einen Platz zum Spielen and in these gardens people, means children, had time to play. Und in schlechten Zeiten gab es genug Kartoffel und Gemüse. And in bad time there were enough potatoes and vegetables. आदमियों के पास एक सहारा था ये गार्डन, कि इसमें कुछ आलू कुछ बोलिए, सब्जी मिल जाती थी. Samstag nachmittags ging man auf Schalke. लोग थोड़ा गेम देखने चले जाते थे फुटबॉल का. फुटबॉल बहुत चलता है रूरगेबीट में, पहले भी चलता था. Das heißt in Stadion, मतलब स्टेडियम में जाते थे. शाल्के में जाते थे मतलब स्टेडियम में जाते थे. Fußball war and ist schon immer etwas Besonderes im Revier. रेवियर मतलब इस रूरगेबीट में, रूरगेबीट का ही दूसरा नाम है रेवियर. Football was always very important and it is still important. We the Kumpel es Ruhrpott liebevoll nennen. रूरपोर्ट, रेवियर और रूरगेबीट एक ही बात है. नेनन. दी कुंपल वारेन ट्रोए फॉन्स ईरर फराइने. कुंपल, जो लोग काम करते थे आपस में, कलीग्स, बडीज, दे वर एक्चुअली ट्रू फैंस ऑफ देयर क्लब. डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं वहाँ पे, फुटबॉल के क्लब्स. जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई, पंजाब 11, सुपर किंग्स, वॉट एवर, ये जो नाम है, ऐसे ही इनके फुटबॉल के क्लब्स हैं. और ये अपने क्लब्स के लिए मरने मारने को उतारू,
तो ये कहानी है रूरगेबिट की। इससे रिलेटेड हम लोग टेक्स्ट करने वाले हैं। अब आप केवल ये चीज तो अभी पढ़ी है हमने, तो ये चीज बता सकते हो, फिर बाकी का डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन वेल्सर रायन फोल्गे इन्फॉर्मियट डेयर आर्टिकल यूबर दी फोल्गेंडन टेमन। ये 3-4 चीजों की बात हुई है। आप टेक्स्ट में बताओ सबसे पहले कौन से, अपन को सीक्वेंस सेट करना है, हो सकता है ये सीक्वेंस सही नहीं हो। इस पूरे टेक्स्ट में एक तो बात हुई आर्बाइट्स मिग्राशन, माइग्रेशन, लोग इधर से उधर गए, फ्री टाइम की भी बात करी, जियोग्राफी से लाग है कि कौन सी चीज कहां पे स्थित है, और आर्बाइट्स बेडिगुंगन, वर्क कंडीशंस। तो सबसे पहले क्या आएगा, किस चीज की बात हुई सबसे पहले? जियोग्राफी से लाग है, यस, बिकॉज इन द बिगिनिंग दे से बिटवीन रूर एंड लिप है, सो यस, das war 1. Dann on second position शुरू में फ्री टाइम की बात तो नहीं हुई थी? नहीं, या रिस्टेश आर्बाइट्स मिग्राशन कि पीपल केम फ्रॉम हियर एंड देयर, und dann आर्बाइट्स बेडिगुंगन मीन्स वर्क कंडीशंस, एंड फ्री टाइम की लास्ट में बात हुई कि फ्री टाइम नाम की तो चीज ही नहीं थी उनके पास। ऐसे करके 1 by 1 चारों पॉइंट्स को इन्होंने डिस्कस किया है।